શ્રી ટોડરમલજી કૃત મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક છે. એમાં આપણે પહેલા પ્રકરણની અંદર આપણે પંચ પરમેષ્ઠી નમસ્કાર મંત્ર અને એના પછી પંચ પરમેષ્ઠીનું સ્વરૂપ આપણે લઈએ છીએ. એમાં આપણે ક્યાં પહોંચ્યા હતા આચાર્ય? હવે એના જે છે પેજ નંબર 2 ઉપર હવે અહીં જેને નમસ્કાર કર્યા છે તેનું સ્વરૂપ ચિંતન કરીએ છીએ ત્યાં આપણે પહોંચ્યા હતા. આ પણ એક વિચારો આપણે જેમ વાત લીધી હતી સમય સારની પહેલી ગાથામાં સિદ્ધોને નમસ્કાર કર્યા તો પછી એનું શું દેખાડ્યું? આપણને સ્વરૂપ દેખાડ્યું. અને એમાં 3 લીધા હતા ને આપણે. કયા શબ્દો લીધા હતા? ધ્રુવ, અચલ અને અનુપમ. એ 3 લીધા હતા ને. છેલ્લે પછી ધ્રુવ ને અચલમાં શું એ વાત લીધી. એવી જ રીતે નિયમ સારમાં પણ કોને નમસ્કાર કર્યા છે? મહાવીર ભગવાન. અને મહાવીર ભગવાનને એમને કેવી રીતે યાદ કર્યા? અનંત જ્ઞાન દર્શન જેમનું સ્વરૂપ છે એ રીતે. આ એક અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે. આજે તમે પ્રથમાનુયુગમાં મહાવીર ભગવાનનું વર્ણન વાંચવું હોય તો મહાવીર ભગવાન કેવા? એક પ્રશ્ન તો પ્રથમાનુયુગમાં શું આવશે? 46 ગુણ સહિત કે એમને કુંડલપુરમાં જન્મ થયો તો, પિતાનું નામ સિદ્ધાર્થ, માતાનું નામ તિસલા, એ બધું વર્ણન. કર્ણાનુયુગથી આપણે કરીએ તો શું એમાં હશે? કે એમને આ 4 ઘાતી કર્મનો નાશ કરી રુજુવાલીના તીરે એમને કેવળ જ્ઞાન થયું હતું. અને પછી પાવાપુરી ઉદ્યાનથી અઘાતી કર્મનો નાશ કરીને એ રીતે વાત એમને, અને સિદ્ધાલયમાં બિરાજિત થઈ ગયા. ચરણાનુયુગમાં વાત કરશે તો શું છે કે એમણે મુનિદશામાં આ રીતે 28 મૂળ ગુણનું બધું પાલન કર્યું, પછી ક્રમે કરીને આગળ થઈને એ રીતે વાત. અધ્યાત્મ શૈલી શું છે કે એમના ગુણોનું. તો અહીંયા જે મેનમાં સ્વરૂપનું વર્ણન તેમાં અહીંયા આપણને હવે, અને આ બહુ જ જરૂરી છે, આપણે ગઈકાલે કોઈ પણ પદાર્થને યથાર્થપણે જો સમજવી હોય, જાણવી હોય, ઓળખવી હોય તો શું કરવું પડે? એના સ્વરૂપ સુધી પહોંચે. લૌકિકતામાં આપણે આવું કંઈ કરીએ છીએ? લૌકિકતામાં શું? વસ્તુ લેવી હોય તો એનું કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથેનો સંબંધ કરવો હોય તો પહેલા શું કરીએ છીએ? એનો ભાઈ સ્વભાવ કેવો છે, કેવી રીતે કાંઈ બહારમાં જે કંઈ કરવાનું હોય તો એ પ્રસંગે એના સ્વભાવ સુધી પહોંચે છે. પૈસાદાર છે એટલા માત્રથી નહીં, જે હશે એમ કહેશે ભાઈ ઓલો કોઈ ભલે એ અત્યારના ગરીબ રહ્યો પણ કેવો છે એનો સ્વભાવ કેવો છે? શાંત છે, સરળ છે, એ બધા પ્રકાર. તેમ અહીંયા પહેલા શું કહે છે? સ્વરૂપ. અને એટલે આપણે તો વાત લીધી હતી જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના. અને એ જ રીતે એક અપૂર્વસરમાં જેમાં જો સ્વરૂપ સુધી પહોંચશું ને તો ન રાગ ન દ્વેષ. સર્વે માયના પૂતગલ એક સ્વભાવ. પૂતગલના ગુણની અપેક્ષાએ એક કોઈ પણ પદાર્થો, કોલસો લ્યો કે હીરો લ્યો, પિત્તળ લ્યો કે સોનું લ્યો, તો એમાં શું ફરક છે? બધામાં શું છે? સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ છે. એમાં શું? તો એ રીતે એમના સ્વરૂપનું ચિંતન કરીએ છીએ. એને આપણે વિચારમાં લઈએ છીએ. કારણ કે જો હવે આપે છે સ્વરૂપનું ચિંતન શું કામ કરું? સ્વરૂપ જાણ્યા વિના એ નથી સમજાતું કે હું કોને નમસ્કાર કરું છું. એનું આ તો એના જેવું સ્વરૂપ નથી સમજતા તો શું થશે? કોના જેવું થશે? કોઈ વડીલ હોય, નાના છોકરાને મંદિરમાં લઈ ગયા, પગે લાગ. હવે ઓલાને ખબર નથી કે મારે હું કોને પગે લાગુ છું, શા માટે લાગુ છું, એનું સ્વરૂપ શું છે, ફળ છે, કાંઈ જ નથી. પણ કેવી રીતે, શા માટે કરે છે? મોટા વડીલે કીધું એટલે કરવાનું, ન કરું તો મને ખીજાશે મને. તો એક કોના જેવું? બહુ સિમ્પલ શબ્દ વાપરવો તો છે ને, એક યંત્રવત. યંત્રવત શબ્દ મિકેનિકલ. એક જેમ ટેપ રેકોર્ડર હોય એમાં તમે પ્લે દબાવો તો એમાંથી શું આવશે? સરસ મજાના નમસ્કાર મંત્ર આવે. હવે એ ટેપ રેકોર્ડર થોડી ખબર છે નમસ્કાર મંત્ર છે. આ એના જેવું થાય. એક યંત્રવત હોય છે, એક કરવા ખાતર એક કરી નાખે છે. તો અહીંયા સૌથી પહેલું આ માટે બહુ જરૂરી છે. શું છે? જે કાંઈ કરીએ છે એની સાથે શું જવું જોઈએ? એનું સ્વરૂપ સમજવું છે, એનું ફળ શું છે એ બધો જ વિચાર કરવો જોઈએ. ને એમાં
ટોડરમલજીના જ આગળ શબ્દો કહીએ તો શું ન હોવું જોઈએ? એમાં વિપરીતતા ન હોવી જોઈએ. વિપરીતતા. અને એના માટે કેટલા શબ્દો લીધા? કારણ વિપરીતતા, સ્વરૂપ કારણ ભેદાભેદ વિપરીતતા અને સ્વરૂપ વિપરીતતા. અને કારણ 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 ભેદાભેદ અને સ્વરૂપ સ્વરૂપ. સ્વરૂપ વિપરીતતા. એટલે એ બધું ક્યાંય ન હોય, એ બધામાંથી એ છૂટી જવું જોઈએ. તો એ રીતે એને કે એ વિના નહીં સમજાય કે હું કોને ના, અને તે સિવાય ઉત્તમ ફળની પ્રાપ્તિ પણ ક્યાંથી થશે? કોને નમસ્કાર હોય કાંઈ ખબર નથી ને ખાલી હાથ જોડી લેવું, માથું ન હોય, તેનું ફળ પણ નહીં. તો હવે એમાં પંચ પદ છે, 5 પદ છે. એમાં એક પહેલું પદ એ અરિયંત પદ છે, એનું સ્વરૂપ આપણે વાત લીધું હતું. આ 5 શું છે? પદ છે. અને પછી એને પદને પ્રાપ્ત હોય તો અરિયંત દેવ કહીએ, સિદ્ધ પદને પ્રાપ્ત હોય તો સિદ્ધ ભગવાન કહીએ, એ જુદી વાત છે. પણ આ બધા શું છે? એકચ્યુઅલી પદ છે. તો એમાં પહેલું. હવે એ અરિયંત થયા કેવી રીતે? જો આ એનું સ્વરૂપ જાણે છે, અને સ્વરૂપ પહેલા એની પ્રોસેસ જાણે છે. કે ત્યાં પ્રથમ અરિયનનું સ્વરૂપ વિચારીએ છીએ. ત્યાં એટલે આ પંચ પરમેષ્ઠીની વાત ચાલે છે. ત્યાં એક બહુ જ વિચારવું, અહીંયા ત્યાં શબ્દ આવે છે, એમાં આમાં તો નથી, પણ જે નવી એડિશન છે એમાં ત્યાં પ્રથમ અરિયનનું એમ લખ્યું છે. એમાં જે ગ્રસ્ત પણ શબ્દ ત્યાંથી શરૂ થયું છે. અહીંયા તો ત્યાં પ્રથમ. અચ્છા, એની ઉપર લાઈન છે, અરિયનના સ્વરૂપની ઉપર લાઈન. હવે ત્યાં એક સામાન્ય છે ને વિચારવું, આ ત્યાં એ કોને દેખાડે? જ્યાં અને ત્યાં, જેની વસ્તુ વાત કરીએ છીએ તેની વાત કરીએ છીએ. જ્યાં અને ત્યાં, ફરીથી જ્યાં અને ત્યાં કોને દેખાડે? જેની ને તેની ને, જ્યાં અને ત્યાં. ક્ષેત્ર દેખાડે. ક્ષેત્ર દેખાડે. તો અહીંયા ક્ષેત્ર છે એમ ન વિચારવું ભાઈ. ત્યાં એટલે આ વાત જે ચાલે છે પંચ પરમેષ્ઠીની, એમાં પછી ક્ષેત્ર નહીં, પણ એ વાતમાં એમ એ રીતે લેવાનું. એટલે આ બધું શું છે? શબ્દની પાછળ કે અર્થમાં એનો શબ્દ પ્રયોગ કર્યો છે વિચારવું જોઈએ. નહીં તો આમ તો કે જ્યાં ત્યાં, એ તો ક્ષેત્રની વાત આવે. ગુરુદેવસિંહના પ્રવચનમાં પણ આવું આવતું હોય. તો એ આપણી ત્યાં શું કરવું છે? આપણા વિવેક જ્ઞાનનો આપણે પ્રયોગ કરવાનો હોય. એમ ના કે જો ત્યાં લખ્યું છે ત્યાં એટલે મારે ક્યાં જવું? જે સ્થળ લખ્યું છે ત્યાં, તો ત્યાં સ્થળ જાઓ, એના માટે જાઓ. અરે ભાઈ, આ જે વિષય ચાલે છે એમાં આ જગ્યાએ આ વિષયમાં એ રીતે છે. તો ત્યાં પ્રથમ અરિયંતનું વિચાર્યું. હવે એમણે પહેલી શરૂઆત, જે ગ્રસ્તપણું છોડી. અહીંયા ગ્રસ્તપણું એટલે સાથે શું લેવું? પંચમ ગુણ સ્થાનક શ્રાવક. 5મું પણ હોય કે ન હોય, 4થું પણ હોય છે. ઓકે. કોઈ પણ સમ્યક. પણ આ લખ્યું નથી, પણ ઇમ્પ્લાઇડ લઈ લેવું કે સમ્યક દર્શન સહિતનું છે. બાકી ખાલી બહારનું છોડીને મુનિપણું લેશે તો ખાલી તો દ્રવલિંગ થશે. એટલે આ બધું જો ફરીથી વિવેક કે ભાઈ જો ગ્રસ્તપણું છે તો અમે ગ્રસ્તપણું છોડીને મુનિ થઈ જશું, એમ નહીં. તો જે ગ્રસ્તપણું છોડી તો કાંઈક છોડ્યું તો શું કર્યું? હવે કંઈક અંગીકરણ કર્યું. તો શું કર્યું? મુનિ ધર્મ અંગીકાર કરી. શબ્દ પણ ટોડરમલજી કેવા વાપરાય? શું કર્યું છે? મુનિ ધર્મ અંગીકાર. મુનિ ધર્મ. એ વળી આ ધર્મ નવો કયો કાઢ્યો? અમે તો ધર્મ તો ભાઈ સમ્યક દર્શનાચાર્ય અથવા જૈન ધર્મ ને એવું હોય. અરે ભાઈ, ધર્મ એટલે શું છે? કે ન્યા ધર્મ એટલે કે ધર્મને એ પૂર્ણતાની પ્રાપ્તિ કરવાની આ પ્રોસેસ છે, એમાં છે. પહેલું તો કયું હોય છે? સમ્યક દર્શન રૂપી છે. હવે તો અહીંયા ચારિત્રમાં તેમાં મુનિ ધર્મ એટલે મુનિપણું. એમ મુનિ ધર્મ એટલે મુનિપણું અંગીકાર કરી. ગ્રસ્તપણું છોડ્યું તો સાથે ગ્રહણ શું થયું? મુનિપણું. એ મુનિ ધર્મ અંગીકાર કરીને ધર્મ છે. અને એક ધર્મનો અર્થ પણ એક બીજો શું થાય છે? ધારી રાખે. તો મુનિપણાના જે અંદરના પરિણામ અને નિયમો એ બધાને હવે ધારણ કર્યા. તો મુનિ ધર્મ અંગીકાર કરી. હવે ત્રીજી વાત, નિસ્વભાવ સાધન વડે. પોતાના નિસ્વભાવના સાધન વડે આ આખું સ્વભાવ સાધન આપ્યું. 5 સમવાયમાં છે કે નહીં? 6 કારકમાં છે સાધન. કરતા કર્મ કરણ
કરણ એટલે સાધન. કરણ એટલે સાધન છે. તો આ નિસ્વભાવના સાધન વડે શું થશે? મુનિ ધર્મ પછી કેવળ જ્ઞાન થશે નહીં. તો અરે સૌથી પહેલું સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં પણ નિસ્વભાવના સાધન વડે છે. એમાં અલ્પતા છે, પછી મુનિ દશામાં એની ઉગ્રતા છે, અને આ હવે તો એનાથી પણ આગળ નિસ્વભાવનો સાધન કર્યું, એટલે કે નિસ્વભાવનો આશ્રય લીધો. એનાથી સૌથી પહેલું શું પ્રગટ થયું? સમ્યક દર્શન. સમ્યક દર્શન. એના પછી શું હવે થયું? મુનિ દશા. મુનિ દશા. હવે એનાથી આગળ શું? નિસ્વભાવ સાધન વડે કે ક્ષપક શ્રેણી પર આરોહણ કર્યું. આ જેને ગુજરાતીમાં કહે ને આ છેલ્લો પડાવ છે. ક્ષપક શ્રેણી પર આરોહણ કર્યું એટલે શું થવાનું? 12મું ગુણ સાંખને 12મું થઈને કેવળ જ્ઞાન થવાનું જ છે નિશ્ચિતપણે. જેમ છેલ્લો ને ઓલો એનો બેઝ કેમ્પ કયો છે? માઉન્ટેનિયરિંગ કરે એનો પહેલો હોય છે બેઝ કેમ્પ હોય, પછી આગળ વધે એમ થતો જાય છે ને, એમ બેઝ કયો છે? આમ તો મુનિ દશા એટલે કેવળ જ્ઞાનની તળેટી એવું બેન્સીએ લીધું જ છે, પણ અહીંયા આપણે એમ લઈએ કે મુનિ દશામાં પણ છેલ્લી જે શ્રેણી આરોહણ છે એ उसको ये केवल ज्ञान का अंतिम बिंदु पहले प्रोसेस में, इसलिए क्या लिखा कि जो गृहस्थ अवस्था को त्याग करके माने सम्यक दर्शन हुआ, उसमें तो घर में रहते एक कसाई का अभाव, 2 कसाई का अभाव, अभी और भी वितरागता प्रकट करने की वैराग्य और पुरुषार्थ हुआ, तो मुनि धर्म साधन द्वारा ये तेरा साधन है. ये मुनि धर्म के बिना किसी को मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है. तो ये मुनि धर्म के साधन द्वारा अपने स्वभाव का आश्रय से द्वारा और दूसरा कोई उपाय नहीं है. क्या हुआ? 4 घाती कर्मों का नाश होने पर. देखो ये सब आप लिखते तो है, टोडरमल जी ने लिखा है 4 घाती कर्मों का नाश होने पर लिखा है, होने से नहीं लिखा है. फर्क है कुछ? क्षय करके. हाँ, माने क्षय होने पर. यहाँ हमारे हिंदी में ना क्षय करके है, यहाँ इसमें होने पर ऐसे लिखा है. 4 घाती कर्मों का क्षय करके, इसमें होने पर माने वो समकाल है, लेकिन घाती कर्म का नाश हुआ 4, इसलिए अनंत चतुष्टय हुआ, ऐसा नहीं है. निमित्त नैमित्तिक संबंध में क्या होता है? दोनों की बात आएगी. समकाल है, लेकिन कारण कार्य नहीं है. जहाँ अपने चलो पहले क्या होता है? 4 घाती कर्म का नाश होता है, बाद में अनंत चतुष्टय होता है, कि अनंत चतुष्टय होने पर ये 4 घाती कर्म का नाश होता है? दोनों को एक समय में होता है, अलग अलग रीति. एक ही समय में, और अलग इसलिए कि एक जीव का परिणाम है और एक पुद्गल का है. जीव और पुद्गल का एक ही समय का परिणाम में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, आगे पीछे नहीं है. निमित्त नैमित्तिक संबंध एक समय के लिए होता है. तो यहाँ जीव के परिणाम में अनंत चतुष्टय की प्राप्ति का काल है, और वहाँ जो कर्म था उसमें कोई गुरुदेव इसका अर्थ बहुत करते, 4 घाती कर्म का क्षय किया, नाश किया, वो उसका अर्थ क्या? पुद्गल का नाश होता है कभी नहीं, यानी कि प्रकाश हुआ तो अंधकार ऑटोमेटिक चला गया. हाँ, वो तो चला गया, लेकिन यहाँ तो नाश लिखा है, तो नाश माने क्या हुआ? ये तो द्रव्य तो जगत में कम होते जा रहे हैं. फिर कर्म का नाश हुआ, कर्म वर्णना तो वही की वही रही. इससे जरूर नहीं, कर्म वर्णना नहीं रहती. नानावणी संबंधी जो कर्म स्कंद नानावणी कर्म रूप परिणमित था, वो कोई स्कंद अभी नहीं ऐसे रही. इसका एक अच्छा है, ये नाश किया, उसका एक सरस शब्द गुरुदेव से बोले, उसकी कर्म रूप जो अवस्था थी वो अक्रम हुई. कर्म अक्रम वो पर्याय बदली है. पुद्गल स्कंद या द्रव्य गुण में कुछ नहीं फर्क है, नाश नहीं होता है. फिर से क्या हुआ? पर्याय का बदलाव हुआ, कर्म का अक्रम हुआ. कर्म रूप परिणमन था, वो अभी और वार्गणा रूप परिणमन हो गया. लेकिन किसी का
नाश कोई नहीं होता। तो यहाँ ये शब्द प्रयोग किया जाता है कि बाकी तो घाती कर्म का नाश होने पर उसी समय अनंत चतुष्टय भाव प्रकट करके ये कहाँ प्रकट हुए? अपने आत्मा में। तो सामने जैसे बिंब और प्रतिबिंब होते हैं ना, सामने कांच का है और यहाँ तो जैसे यहाँ पदार्थ का परिणाम ऐसे वहाँ हुआ, तो ऐसे ही यहाँ जीव का परिणाम और सामने कर्म का दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध में। तो एक ही समय में किसके कथन पद्धति में कोई निमित्त से बतावे या अपने उपादान से बतावे, कार्य तो दोनों का अपना अपना है। इसलिए अच्छा ये श्रीमद जी में एक अच्छा आता है ना, पद क्या आता है? जड़ भावे जड़ परिणमे चेतन चेतन पाए, कोई कोई पलटे नहीं छोड़ी आप स्वभाव। दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध बन सकता है, एक क्षेत्र संबंध बनता है, संयोग संबंध बनता है, लेकिन दो पदार्थ में से कोई भी पदार्थ अपना स्वभाव छोड़ के दूसरे के रूप हो जाए ऐसा कभी होने वाला ये नहीं है। तो यहाँ इस प्रकार जो अनंत चतुष्टय भाव प्रकट करके अभी देखो अरियन दशा तो ये सिद्धनु स्वरूप अभी चलो फिर से जो ग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा, देखो ये किसका साधन कौन बनाया? अपना निज स्वभाव। निज स्वभाव माने क्या? त्रिकाली स्वभाव। फिर से पहले कहाँ से प्रारंभ किया टोटल जी ने? ग्रस्त दशा। तो ग्रस्त दशा में सम्यक दर्शन हो गयो और पंचम गुण स्थान दोनों हो सकते, उसका छोड़कर अने ग्रस्तपने के जो भी विकल्प है, बाय में संयोग है, वो सभी छोड़कर, ऐसे नहीं कि अभी पंचम काल में डिफिकल्ट है तो थोड़ा हमें छूट दे दो कि नहीं हम घर में बैठे भी मुनि धर्म करेंगे या कोई एक स्थान में, ऐसे नहीं। वो सभी ग्रस्तपना के दोनों क्या उस संबंधी विकल्प और उस संबंधी बाय में योग, और सही माने में अस्थिरता का विकल्प छूटता है तो बाय का योग भी छूट जाएगा ऑटोमेटिक निमित्त। ऐसे तो वहाँ छोड़कर अभी अंगीकार किया गया, मुनि धर्म अंगीकार किया, मुनि दशा। अभी मुनि दशा का सही स्वरूप समझे न तो हमें लगे कि कितनी वो महिमावंत दशा है कि जहाँ अपना आत्मा की साधना के लिए पूरे विश्व से क्या है उपेक्षा, कोई बुलावे न बुलावे, आहार पानी कोई मुनि बनने के पहले कौन सी व्यवस्था कर लेनी चाहिए? रहने की व्यवस्था, खाने पीने की नहीं, चलो रहने की तो नहीं, वन जंगल में रह जाएंगे, लेकिन कुछ खाने पीने के तो करनी चाहिए ना। हम कहाँ जाते करते तो पहले रहने की भी करते और खाने पीने की भी करते हैं ना। शरीर के प्रति इतना राग छूट गया है कि उसमें आहार मिले या ना मिले उसका भी विकल्प नहीं है। ऐसे मुनि धर्म सही मानने में मुनि दशा कैसी होती है इसे अभी देखने तो सही रूप से नहीं मिलती, कैसी होती है वो भी ध्यान में नहीं तो अंगीकार करके अभी पुरुषार्थ कौन सा है? निज स्वभाव साधन। फिर से इसमें कौन छूट गया? पर का संयोग छूट गया। पर संयोग की बात तो नहीं, यहाँ तो पर भाव जो स्वभाव नहीं है वो उससे कोई भी भाव साधन नहीं है, क्योंकि सिद्ध दशा कैसी है? स्वभावमय है ना, तो उसका साधन भी क्या होगा? निस्वभावी होगा। साधन भी निस्वभावमय परिणाम होंगे। जो रागादि भाव अपना स्वभाव रूप नहीं है वो इसमें साधन नहीं होंगे। मुनि राज ने 28 मंडल का पालन किया इसलिए उन्हें केवल ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं है। शरीर में व्रज वृषभ नारी वो तो दूर की बात हो गई, चतुर्थ काल था दूर की बात। यहाँ तो कहते हैं कि भूमि मुनिराज के जो 28 मूढ़गुण का विकल्प आदि जो भी है 28 मूढ़गुण, इससे ये हुआ कि नहीं निस्वभाव के साधन। निस्वभाव माने अपने स्वभाव का आश्रय लिया और उससे ही उन्हें क्या हुआ?
चार घाती कर्म का क्षय हुआ करके और क्या प्रकट हुआ अपनी परिणति में? अनंत चतुष्टय रूप विराजमान होवे। और वो अनंत चतुष्टय, दूसरा उसको क्या नाम देते हैं? अनंत चतुष्टय से जैसे ना अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, इसकी जगह केवल ज्ञान, केवल दर्शन, इस प्रकार अनंत चतुष्टय में हम कैसे शब्द प्रयोग करते हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। उसकी जगह भी हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख और केवल वीर्य। वहाँ केवल माने पूर्णता का, और यहाँ अनंत भी पूर्णता का। तो इसे अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। कहाँ विराजमान हुए? अपने स्वभाव में। अपने स्वभाव में तो सही। यदि बाई की अपेक्षा देखे तो कोई तीर्थंकर आदि होंगे तो कहाँ विराजमान होंगे? समस्रण में। और कोई सामान्य केवली हो तो सामान्य केवली के गंधकुटी आदि इतना होते हैं, लेकिन तीर्थंकर हो तो उसका निश्चित रूप से क्या होता है? समोसरण की रचना सोदरमन इंद्र की आज्ञा से कुबेर करता है। तो सामान्य केवली की गंधकुटी ही होती है कि नहीं? इतना तो सामान्य होता है, अभी उसका डिटेल तो पता नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से गंधकुटी और ऐसा तो होता है। तो गंधकुटी का अर्थ क्या? गंधकुटी यानी कि क्या? नीचे वो सिंहासन आदि नहीं होता है भगवान के लिए, वही कमलासन है ना उसमें। ये सब सामान्य रूप से जो होना है, इसलिए यहाँ सभी कभी भी आप कोई केवली का चित्र आप देखेंगे तो इतना तो है, सामान्य रूप से तो होता है। तो यहाँ ये अंतरंग में अनंत चतुष्टय में विराजमान, बाह्य में देखो तो इस प्रकार होता है। अभी ये यहाँ तक क्या लिया? चर्चा किसकी करते हैं? यहाँ नमस्कार मंत्र है, उसकी बात आ गई। अभी इसमें जिसको नमस्कार किया वो कैसे है, उनके स्वरूप का, तो यहाँ अरिहंत का स्वरूप में अरिहंत कैसे हुए वो पूरी प्रोसेस बता दी। अभी कहते कि जो अनंत चतुष्टय हुआ तो इसमें क्या था? एक अनंत ज्ञान भी है। तो वहाँ अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को, चलो इसमें दो फर्क क्या आया? अनंत ज्ञान द्वारा माने केवल ज्ञान द्वारा अपने अनंत गुण पर्याय सहित, इसमें कौन आया? स्वप्रकाशक। स्वप्रकाशक बनाया। और शब्द क्या दिया? अनंत गुण और पर्याय हमारे ज्ञान में नहीं है, हमारे तो नहीं। कहाँ तक नहीं? गंधर्व देव आदि हो तो भी नहीं, क्योंकि वो कैसा ज्ञान है? शुद्ध ज्ञान है, माने अपूर्ण ज्ञान, क्षोभम ज्ञान है। छद्मस्त उसमें ज्ञान आच्छादित पूरा खिला नहीं है। तो ऐसे आगम द्वारा और ऐसे परोक्ष स्वीकार है, लेकिन केवली भगवान जैसे प्रत्यक्ष जानते हैं ऐसा नहीं जानते। कभी प्रश्न होता है ऐसे संभव है एक ही समय में अनंत गुण जान सकते? से लमसम जान लेते होंगे, ऐसे इंडिविजुअल गुण को जान सकते हैं। आप समझ लिया, यहाँ तो आत्मा की चर्चा है। आत्मा में कितने गुण है? संख्या पे अनंत तो है, और कुछ आत्मा में अनंत गुण है, लेकिन वो अनंत कैसे कंपैरिजन में? अनंत जीव, पुद्गल अनंत अनंत, तीन काल के समय अनंत अनंत अनंत, आकाश के प्रदेश चौथा अनंत, और गुण पांचवा अनंत। तो काल, भूत, वर्तमान, भविष्य करके अनंत समय, बराबर। उससे गुण कैसे है? अनंत अनंत, आकाश के प्रदेश। तो एक काल में तो एक समय में, इसके एक समय में ऐसे कैसे अनंत जान सकते होंगे? काल में या उनके से उससे भी ज्यादा, तो एक समय में इतने गुण कैसे जान दे? ज्ञान की कैपेसिटी। ये आप बोल लेते, ऐसा नहीं लगता ये लम समझान भाई इतना है, अनंत अनंत है, देख लेना तू अभी नहीं। हम कभी भी अनंत केवल ज्ञान की अतियात सिंपल
ज्ञान की अनंतता को हम सही समझते ही नहीं है कि ज्ञान का सामर्थ्य कितना है। जानना किसको माने किसी को न जानना वो जिसमें आता ही नहीं। और यदि ये जानने में सिर्फ 2 ही समय लगे तो भी क्या होगा? तो अनंत केवल ज्ञान नहीं रहेगा, तो पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। आपने क्रम किया तो समझ लेना वो पूर्णता नहीं है। इसे तो खाली सिर्फ अपने ही और ये अनंत गुण उनकी पर्याय कितनी? अनंत ही पर्याय। एक तीनों काल के लिए तो अनंत पर्याय। एक गुण की एक समय में एक है, ऐसे तो अनंत गुण की इतनी है, लेकिन उनकी तीनों काल की समझे एक जीव द्रव्य, इसके अनंत ऐसे गुण, और एक एक गुण में तीनों काल की लेवे तो कितनी पर्याय? अनंत। वो एक एक पर्याय में समझ लीजिए कितने अविभाग प्रतिशत? अनंत। आप कहाँ तक ले गए? 7वां अनंत आ गया। आप समझिए कहाँ तक। और ये सबको कितने समय में? एक समय में। और उसमें भी कुछ ऐड करना है। युगपद है, प्रत्यक्ष है, उसमें फिर से हम तो एक द्रव्य पे गए, ऐसे तो द्रव्य अनंत है, वो सब दूर की बात है। एक द्रव्य, उनके अनंत गुण, एक एक गुण की तीनों काल की अनंत पर्याय, और एक एक पर्याय में अनंत अविभाग प्रतिच्छेद। ये सबको ऐसा एक द्रव्य, ऐसे अनंत द्रव्य कौन जानता है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। कितने समय में? एक समय में। और उसमें कुछ ऐड करना है। अनंत विश्व होते तो भी आप कल्पना कर सकते हैं इसके ज्ञान के सामर्थ्य की इस प्रकार कि इतना होने पर भी, इतना ज्ञ को जाने फिर भी इसे मत समझ लेना कि ज्ञान का सामर्थ्य पूरा हो गया। यदि इससे और अनंत गुणा विश्व हो यदि होता तो उसको एक समय में जान। आश्चर्य लगता है। ऐसे ज्ञान स्वभाव की महिमा छोड़ के भाई पुद्गलों में क्या तुझे अधिकता लगती है कि वहाँ तेरी रुचि होती है, वहाँ उल्लिसित वीर्य हो जाता है। मानो समझ लो किसी को लगा कि तुझे फर्स्ट माने एग्जाम में आया, तुझे बड़ी नौकरी लग गई, इसमें क्या तुझे ललच आई जाए, लालच आती है वहाँ के तुझे हर्षित, तो तेरे एक ज्ञान स्वभाव की महिमा नहीं इतनी ऐसे। तो ऐसे ही जो वहाँ अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित अपना स्वलीय अभी पर में समस्त जीवादि द्रव्यों को, ये स्वलीय और अभी पर समस्त जीव में कौन लेना? समस्त जीव में इनकी मैं तो जीव स्व की तो बात आ गई, अभी पर जीव और बाकी सभी जो 5 अजीव है सबको, उन द्रव्यों को इसमें भी ऐड कर देना। एक एक द्रव्य के उनके अनंत गुण, एक एक गुण के अनंत, सभी उसमें भी जैसे जीव में घटित किया ऐसे ये द्रव्य को अभी कैसे है? युग पद विशेष पाने से प्रत्यक्ष जानते हैं। पहले क्या लिया? पहले यहाँ तक क्या लिया? अनंत गुण पर्याय से समस्त जीवादि द्रव्यों को, वहां तक क्या लिया? स्वप्रकाशक प्रक्रिया, ज्ञान का विषय लिया। ज्ञान का पूरा विषय इसमें आ गया, पूरा स्व पर नहीं आ गया, द्रव्य जो भी। अभी कैसे जानते? किसको जानते हैं? तो स्व पर पूरे कैसे जानते हैं? युग पद, काल के रह से युग पद, एक ही साथ में एक ही समय में, 2 समय भी नहीं, और वो वर्तमान अभी विशेषपन है इसमें, वर्तमानवत विशेषपन है। विशेषपन माने वर्तमान में वर्तमानवत या तो आगे प्रत्यक्ष आ गए विशेषपन में, और उनकी क्या है? एक एक पर्याय, एक एक गुण, लमसम समूह ऐसे नहीं, विशेष माने एक एक करते। जैसे ज्ञान कैसा है? सविकल्प, और दर्शन कैसा है? अविकल्प, निर्विकल्प। माने सामान्य है दर्शन,
और ज्ञान कैसा है, एक एक करके विशेष है। तो यहाँ विशेष ऐसे करके निश्चित रूप से, ऐसे नहीं कि भाई चलो होंगे, थोड़े होंगे, 2-5 होंगे, ऐसा नहीं। युगपद विशेष पने से प्रत्यक्ष जानते हैं। प्रत्यक्ष अर्थ क्या है? यानी कि इंद्रिय के माध्यम से नहीं, मन के माध्यम से नहीं, प्रत्यक्ष आत्मा जानता है। इसमें किसी का अवलंबन नहीं है, आधार आश्रय नहीं है, सीधा जानते हैं। जो भी बाई में गए हैं वो सबको किसी की सहाय मदद अवलंबन के नहीं, उसका नाम ही क्या है? प्रत्यक्ष। यहाँ ऐसा मत समझना कि प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसा नहीं। सही माने में प्रत्यक्ष पना तो किसका स्वभाव है? ज्ञान का है, पर वो तो नहीं जानने। और प्रति अक्ष, प्रति जैसे बोलते हैं मैं मेरी आंखों से देखा, ऐसे बोलते हैं ना, इस अपेक्षा है यहाँ ज्ञान। ये भी एक आश्चर्य है ना। क्या है प्रत्यक्ष में? क्या एक आश्चर्य क्या है? जिसको प्रवचन सार में क्या है, प्रविष्ट नहीं हुए तो भी माने प्रविष्ट हो गए ऐसे जानते नहीं मानते। જ્ઞાનમાં આવી ગયા છે ને, ખોડાઈ ગયા છે ને, કોતરાઈ ગયા છે ને, એવા શબ્દ આવે છે કે ને? તો સही माने में तो ज्ञेय से ज्ञान कैसा है? भिन्न है। भिन्न रहते हुए भी मानो उसमें प्रवेश करके, मानो या तो ज्ञेय ज्ञान में आ गए, इस रूप से प्रत्यक्षता के लिए बताया इसमें। ये ज्ञान का ऐसा ये सामर्थ्य। किसी को लगे ना ये दूर रह के जानता है ना, तो माने दूर रह के जानता माने ऊपर ऊपर का ख्याल में आया होगा, अंदर का नहीं ख्याल में आया। नहीं भाई मैं तो दूर खड़ा था भाई, मुझे ऐसे, तो इस प्रकार नहीं है। यहाँ कैसे है प्रत्यक्ष में? माने कैसा है? मानो ये सभी ज्ञान में आ गए हो, ऐसे ही किसी का अवलंबन बिना। तो ये युगपद विशेष पने और प्रत्यक्ष जानते हैं। कभी हमारे लिए मत ऐसा बोलना कि मैं, ये टेबल है हमारे लिए प्रत्यक्ष है परोक्ष? टेबल तो टेबल ही है। हाँ, मैंने जो जाना तो इंद्रिय ज्ञान से जाना। अभी 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 पदार्थ में कभी भी प्रत्यक्ष परोक्ष नहीं लगाना। बराबर। ये पीछे सामव्यवहारिक प्रत्यय वो अलग बात है। बाकी सही माने में ज्ञान कैसे जानता है, उस पद्धति में प्रत्यक्ष परोक्ष। ज्ञान ने स्वयं स्वाधीनपणे जाना तो उस ज्ञान का नाम प्रत्यक्ष है। और यदि कोई अवलंबन के इंद्रिय मन से जाने तो चश्मा से जाने, ये सब तो क्या कहेंगे? परोक्ष। इसलिए तत्वात् सूत्र में ज्ञान के प्रत्यक्ष परोक्ष भेद दिए है। मति श्रुत परोक्ष है, अवधि मन एक देश प्रत्यय, केवल ना सकल प्रत्यय। तो इस प्रकार यहाँ जानते हैं। फिर दूसरा प्रणति, अनंत दर्शन द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करते हैं। किसका? अनंत दर्शन द्वारा अनंत गुण पर्याय सहित जीवन, जो भी पूरा विश्व ले लो, ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञेय है, दर्शन की अपेक्षा से वो दृश्य है। तो यहाँ अनंत दर्शन द्वारा, देखो यहाँ ये सब नहीं ऐसे ज्ञानावणी गया इसलिए नहीं, दर्शनावणी गया इसलिए नहीं, अनंत दर्शन अपने द्वारा उनका माने छहोदय का, पूरे विश्व का सामान्य अवलोकन। सामान्य अवलोकन माने क्या? यानी कि एक रूप से भेद किया, निर्विक अभेद रूप से, अभेद रूप से, भेद किए बिना, भेद किए बिना फिर क्या? देखता है। अवलोकन माने देखता है, ज्ञान जानता है। वो भेद करके जैसा है। तो यहाँ तो ऐसे तो ये ज्ञान का देखो पर्याय में अविभाग प्रतिशत तक पहुंचा। तो यहाँ दर्शन क्या करता है? आनंद दर्शन। सामान्य अवलोकन माने क्या? भेद नहीं करते, खंड न करे, ऐसे हो। लेकिन और एक कोई शब्द है, ऐसा अस्थि ग्रहण। अच्छा है, उसको माँ सत्ता अवंतस करते ना, छे बस है। कैसा है तो ज्ञान में चला लो, बस है, बस है भी एक कहने के लिए, बाकी ये है ऐसा नहीं, पर है बस। सामान्य अवलोकन है, अस्तित्व ग्राही दर्शन है, और सर्वांग ग्राही को नहीं, ज्ञान है। तो यहाँ आनंद उनका सामान्य अवलोकन करते हैं।
फिर तीसरा, अनंत वीर्य द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। ऐसी माने कैसी? जो जानने की बात हुई स्व पर प्रकाशक की, या तो अवलोकन की बात हुई है, सबको नहीं, तो भी अनंत वीर्य द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। पुरुषार्थ नहीं, ऐसी सामर्थ्य माने ऐसे ही जो अनंत दर्शन ज्ञान आदि वो पर्यायों की रचना का सामर्थ्य, पर्याय की रचना का सामर्थ्य है ना, स्वरूप का रचना सामर्थ्य रूप है। तो अनंत वीर्य द्वारा ऐसी सामर्थ्य, ऐसे सामर्थ्य माने वो ज्ञान लोकालोक को जाने, तो ऐसी पर्याय की प्रकटता, दर्शन सामान्य अवलोकन करे तो उसकी रचना में जो पुरुषार्थ है वो किसका है? वीर्य का। अनंत वीर्य द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं कि अनंत ज्ञान अनंत दर्शन प्रकटे, ऐसी प्रणति। फिर अनंत ज्ञान है किसको जानते हैं? वो लोकालोक। इसमें तो ये जो प्रणति प्रकट हुई, तो ये प्रकट करने में अनंत वीर्य का क्या है? सामर्थ्य है ऐसी रचना करने का। और आखिर में अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं। देखो इस सुख की व्याख्या की समय सार शक्ति में, क्या सुख कैसे क्या उसकी व्याख्या? वो जीवन पांचवी है ना, पांचवी शक्ति, सुख शक्ति, या पांचवी जीवत्व, चिति शक्ति, दृष्टि ज्ञान और सुख। तो सुख की क्या व्याख्या है? निराकुल परमात्मा नहीं, अनाकुलता लक्षण सुख शक्ति, अनाकुलता लक्षण, और उसको ही यहाँ टोटल में निराकुल का समानंद सेम। अनाकुलता लक्षण सुख शक्ति, और यहाँ क्या लिखा है? निराकुल। अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं। हम भी कभी कभी निराकुलता का अनुभव करते हैं ना, करते हैं ना? हमारा आकुलता सहित का अनुभव होता नहीं नहीं, कभी कभी मैं माने हर नहीं। चलो फिर से आप बता दीजिए। आप घर में बैठे हो, अपना ही घर है, अपना ही, तो इसमें तो आपका आकुलता नहीं यहाँ कोई खाली कराया गया कहाँ है, ऐसा नहीं है ना? वो अबुद्धिपूर्वक का, अबुद्धिपूर्वक कुछ नहीं है। ऐसे तो आप कैसे बोल देते अबुद्धिपूर्वक का है, कहाँ से? चलो इतना तो निराकुल है कि नहीं? हम सही घर में बैठे, हमारा ऐसा घर है कि वो रजिस्ट नहीं, अर्थक्वेक रजिस्टर वाला उसमें मैं सिस्टम कराइए। क्योंकि मैं मिथ्यात्व में हूँ तो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व सहित ही इतना लंबा नहीं, इतना नहीं, निराकुल है कि नहीं? बस नहीं छोड़, मैं ये सब पूरा नहीं करता हूँ भाई। शरीर में रोग आए उसके मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ तो मैं आराम से वैसे मेरे ऐसा साउंड मैंने इन्वेस्टमेंट किया कि मेरे पूरे लाइफ तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कर्म में से सुख होता है, वो मान्यता ही आकुलता है। अरे भैया वो है, लेकिन मैं घर संबंधित आकुलता नहीं है ना। तो घर पर होगा कि नहीं? तो फिर भी मेरा एकत्व मैंने कर दिया तो वो आकुलता हो गई। मेरा है तो इसलिए तो क्या? अरे भैया उस संबंधी आकुलता नहीं, ऐसा मत समझना। अभी चलो ये हो गया, अभी थोड़ा जीर्ण हो गया, रिपेयरिंग करना पड़े, ये कैसे, अभी नहीं है तो भी होगा, इसके पीछे आकुलता है। जैसे शरीर में अभी रोग नहीं है, लेकिन आकुलता कौन सी है? हो जाएगा, कभी हो जाएगा, खुश हो जा। हाँ आकुल अज्ञान दशा में या तो राग द्वेष है तो वहाँ आकुलता न हो, ऐसे कभी भी संभव नहीं है। अग्नि के हाथ डाल और मुझे जलन नहीं हुआ तो ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ क्या है? अनंत सुख द्वारा निराकुल, और निराकुल में वो क्या है? परम आनंद। परम आनंद माने अतीन्द्रिय, उत्कृष्ट अतीन्द्रिय तो है, उत्कृष्ट आनंद का अनुभव करते हैं। कौन करते हैं? अरिहंत भगवान। क्यों करते हैं? एक किसका फल आया? अनंत चतुष्टय। किसका फल आया? अनंत चतुष्टय का। कि अनंत चतुष्टय में एक है, और फिर उसके पहले ही ग्रस्तता छोड़ी, मुनि धर्म अंगीकार किया, और फिर श्रेणी द्वारा, क्षपक श्रेणी द्वारा, तो इसका फल में ये अनंत आनंद का, निराकुलता का अनुभव करते। पुनश्च
जो सर्वथा, ये क्या लिया? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। इसमें ये क्या लिया? अस्थि से लिया, अस्थि से बात लिया। तो ऐसा जो गुण प्रकट हुआ तो कौन सा दोष छूट गए? है ना सामने। बराबर। आप अंधेरा था और आपने प्रकाश किया, तो चलो पूरा नहीं किया तो जितना में प्रकाश किया इतना तो अंधकार गया कि नहीं? तो यहाँ ऐसे ही कहते हैं कि ये इसे अस्थि रूप भाव जो प्रकट हुआ तो कौन छूट गए? किसका अभाव हुआ? ये जिसको कहे उत्पाद हुआ तो वहाँ व्यय किया क्या हुआ? और दोनों में मैं अकेला टिकता हूँ तो मैं ध्रुव तत्व हूँ। वो भी एक निश्चित है। किसी का नाश हो और किसी का उत्पन्न हो, लेकिन वस्तु तरीक रूप से तो कैसे एक ही रहती है। जैसे सोने के में कोई भी एक बैंगल में से आपने और कुछ बनाया तो सोना तो दोनों में है रहा ना, पहले भी था और अभी भी है। तो यहाँ अभी जो छूट गया, दोष छूट गया, वो क्या? जो सर्वथा। चलो, जैन में सर्वथा होता है कि नहीं होता? ये सम्यक एकांत में सर्वथा शब्द आएगा। सर्वथा शब्द कहाँ आएगा? सम्यक एकांत। सम्यक एकांत में, मिथ्या एकांत में नहीं आएगा। मिथ्या एकांत में ले सकते हैं, लेना ले तो नहीं, आता ही है। एकांत में आएगा ही, चाहे सो मिथ्या हो चाहे सो सम्यक। क्या क्यों ऐसा क्यों? एकांत में निश्चित रूप से सर्वथा क्यों आएगा? क्योंकि वो जिसको कहते हैं ना ही आएगा। ही भी नहीं आएगा, ही आएगा। ही એટલે माने क्यों? सर्वथा कहो, ही कहो, क्यों निश्चित रूप से क्यों? इसका नाम ही एकांत है। उसका नाम और भी खुला कुछ। अरे आप एकांत बोलते तो एक ही धर्म है, तो एक ही धर्म में आप मुख्य गुण क्या करेंगे? स्यात क्या लगाएंगे? बराबर। आप जब भी एकांत कहते हो तो कितने धर्म सिद्ध हुए? एक ही हुए। तो एक ही में जैसे कोई व्यक्ति को एक ही संतान समझते हैं ना, लड़का एक ही हो तो उसको बड़ा कहेंगे छोटा कहेंगे? बराबर। तो ऐसे ही आपने तो वस्तु में एकांत स्थापित किया, तो अभी अनेकांत कहाँ लागू होगा? मुख्य गुण कहाँ होगा? तो फिर स्यात कहाँ होगा? कथनचित कहाँ होगा? तो इसलिए यहाँ तो फिर तो एकांत क्यों लिखा? फिर जैन में तो अनेकांत होता है, स्यादवाद होता है, कथनचित होता है, स्यात होता है। दृष्टि का विषय में एकांत आएगा और अरे यहाँ ऐसे इतना आप तो कहीं सर्वथा राग, सर्वथा का यहाँ के पूरा राग का अभाव हुआ। सर्वथा प्रकार से माने सभी, माने एक राग का अंश भी नहीं रहा, इसका नाम है। तो यहाँ सर्वथा राग द्वेष आदि विकार भावों से रहित, ये अस्थि में आया तो सर्व राग और भी। चलो, सर्व में पे दो शब्द आया, सर्वथा और सर्व राग द्वेष। तो सर्वथा हमने तो ले लिया कि सभी अपेक्षा से स्वभाव में तो थे भी नहीं और अभी तो पर्याय में रहे, इसलिए सर्वथा। पदार्थ होता है ना, पदार्थ में दो भाव, मुख्य भाव, एक द्रव्य रूप भाव और एक पर्याय। तो द्रव्य में तो था ही नहीं, अभी पर्याय में भी नहीं आया, इसलिए उसका नाम क्या था? सर्वथा। द्रव्य अपेक्षा से भी और पर्याय अपेक्षा। फिर सर्व राग द्वेष माने क्या? यानी कि क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी। हाँ, सर्व माने संख्या माने क्वांटिटी, तो सर्वथा इस प्रकार माने कोई भी पर्याय में भी नहीं। तो सर्व माने क्या? सर्व राग द्वेष। सर्व यानी कि टोटल क्वांटिटी। हाँ, पर इसमें और भी कुछ खुलासा, चाहे सो शुभ हो चाहे सो अशुभ हो, चाहे सो अनंतानुबंधी चाहे सो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, ये सभी सर्व असंख्य प्रकार के शुभ अशुभ है ना, पुण्य या पाप, कोई भी सर्व। तो सर्व राग द्वेष आदि विकार भावों से, स्वभाव थी विरुद्ध है, ऐसे विकार भावों से रहित होकर शांत रस रूप परिणमित हुए है।
फिर से ये शब्द क्या सोचना है? फिर से पुनः से એટલે माने फिर से, हाँ, फिर से जो सर्वथा राग द्वेष, सर्वथा माने सभी प्रकार द्रव्य और पर्याय कोई भी निश्चय और व्यवहार। अरिहंत भगवान को निश्चय से राग द्वेष नहीं है, तो व्यवहार से राग द्वेष निश्चय से है या व्यवहार से है? अरे परमात्मा को राग द्वेष निश्चय से या व्यवहार से? है ही नहीं तो है ही नहीं तो वो प्रश्न। वितराग हो गए हैं। हाँ, तो उसका नाम ही सर्वथा है, पूर्ण वितराग हो गए हैं। उनके निमित्त रूप मोहनी कर्म का भी अभाव हो गए है। तो सर्वथा और सर्वराग, कोई भी प्रकार का तो सोच ले, इष्ट में राग, अनिष्ट में द्वेष, ये सभी का कैसा? ये विकार भाव है, और विकार भाव है वो आकुलता के कारण है। इसका अर्थ हुआ राग द्वेष ये विकार भाव दुख के कारण। तो उससे रहित होकर फिर से ये नास्ति आई, तो क्या हुआ? शांत रस रूप परिणमित हुए है। फिर से परिणमित हुए माने यानी कि अभी पर्याय में भी ये आ गया है। परिणमित हुए है, पहले नहीं था। नहीं था, पहले ऐसी दशा प्राप्त नहीं की थी, इतना पुरुषार्थ नहीं किया था, तो ऐसी शांत रस रूप ये तुझे भूतकाल में कभी भी परिणाम नहीं हुए, इस रूप में परिणमित हुए। पहले नहीं था और अभी हुए। तो अशुद्धता आ गया, अशुद्धता आ गई तो क्या हुई? शुद्धता, शांत रस, शांत विकार भाव गया तो क्या हुआ? अधिकारी स्वरूप शांत। तुझे शांति चाहिए ना, नहीं कभी होता है ना, चले सब झंझट छूट जाए, मैं अकेला कहीं जा बैठ, तुझे शांति चाहिए ना, तो तू ऐसा कर, विकार भाव छोड़ दे। विकार तो छोड़वा, और क्या? मुझे शांत रस चाहिए। शांत रस नहीं, हमें तो होता है ना, हम किस में बैठ जाते हैं? शांति में, ध्यान में, मेडिटेशन। हाँ, ध्यान में, मेडिटेशन में बैठ जाता है, और मुझे तब कैसा होता है? शांति 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 लगती है। अच्छी बात है, इसमें शांति लगती तो फिर धारो जी बैठता ना, तो 1 घंटा क्यों पूरा ले लो। अरे भाई, अने वो क्रमशः वो भी छूट जाता है। शांति संयोग से आती नहीं, शांति विकारी भावों से नहीं आती, शांत स्वरूप आत्मा के आश्रय से आती है। लेकिन बाह्य ढूंढते जा रहे, बाह्य में हम ढूंढेंगे आत्मा को, कभी मिले या सुख शांति कभी मिलेगी? जिसमें सुख शांति का गुण ही नहीं है तो कैसे नहीं, कभी कभी तो चलो आप बोले तो इतना मिलियंस साल के बाद मिलेगा, नहीं मिलेगा। अरे जिसमें है ही नहीं उससे तुझे क्या पता? तो सही में ये तो यहाँ रहित होकर शांत रस रूप परिणमित हुए। तो शांत रस यानी कि राग द्वेष मोह का अभाव, उसका अभाव माने अकसायपना। शांत रस अकसायपना। ओके, गुरुदर्शी बहुत बार एक शांत रस में अकसायपना लेते हैं। शांत रस को अकसायपना, क्योंकि कसाय में निरंतर क्या रहती है? आकुलिता, आकुलिता, अशांति। तो यहाँ उससे रहित ये शांत। तो शांत रस, ये वही कोई नया रस आया? हम तो 5 रस जानते थे। 9 रस है। 9 रस है? अच्छा, और कौन से? चलो शांत रस से। शांत रस है, श्रृंगार रस है। वो तो आप बोले बोलने में और उसमें, बाकी सही मानने में पुद्गल में 5 रस है। 5 होता है। तो यहाँ कहाँ से है भाई? ये आत्मा का है इसलिए अलग है। बाकी तो जो पुद्गल के है ना वो तो अरस से, आत्मा के लिए तो शांत रस। ये 38 गाथा के बाद में जयचंद जी ने श्लोक के बाद पूछा है शांत रस अध्यात्म का। अध्यात्म में शांत, जहाँ कोई आकुलता नहीं है, कसाई नहीं, परिणाम एकदम स्थिर स्वभाव के आशय से। मानो परिणाम भी कैसे हो गए? स्थिर मान। तो ये शांत रूप परिणमित है। तथा क्षुधा त्रसादि समस्त दोषों से मुक्त होकर देवादि देव पने को प्राप्त हुए हैं। इसका ये बहुत अच्छा, ये क्षुधा त्रसादि ये क्यों लिया खास? तो 18 दोष महा होते हैं ना, 18 दोष होते हैं। हाँ, वो क्यों ऐसे में? क्योंकि यदि भगवान को एक तो चलो 1 करोड़ पूर्व का आयुष्य है सिमंदर भगवान जैसे को, तो इतने थोड़ी भूखे रहेंगे भगवान। हाँ चलो आपने कहा तो
महावीर भगवान का था 72 आयुष था, 72 साल। इसमें 30 साल तक तो कहाँ रहे, केवल गृहस्थ दशा में। फिर तो इसमें चलो वो तो हम मान लेते हैं, चलो वो जैसे तैसे पूरा कर, लेकिन 1 करोड़ पूर्व का आयुष हो और आप बोले उनको क्षुधा नहीं लगती, आहार नहीं लेते, तो वो जीवित कैसे रहेंगे? अरे भाई, तुझे क्षुधा लगती है ना, वो तुरे पीड़ा के कारण है, अच्छी बात नहीं है। नियम सार में 6वीं गाथा में, इसके 5वीं गाथा में अरिहंत बताया स्वरूप, तो उसका 6ठी गाथा में 18,200 से रही बताया कि तुझे क्षुधा लगे, वो किसका सूचक है? पीड़ा होती है। और उसमें तो इतना सरस वीण लिया कि जब भी भूख का है तो तभी स्टमक में क्या है, क्या बोलते हैं, एसिड, यानी एसिड आता है। और उसी एक क्या हुआ, एक पुद्गल का 9 कर्म का परिणाम हुआ, जठराग्नि आदि है ना उसमें। तो उसी समय मोह कर्म का उदय है। ये किसका उदय है? जठराग्नि में भूख लगी, वो बाय में 9 कर्म का, माने अघाती का। वहाँ अभी અહીંયા जीव के परिणामों के निमित्त में घाती कर्म का एक मोह भाव। 2 बात हुई, यहाँ तक दुख का वेदन नहीं है। वहाँ नाम कर्म में अघाती कर्म में उदय आया। यहाँ उसी समय जीव में घाती कर्म में मोहनी कर्म का उदय। अब तक क्या है, यहाँ दुख नहीं हुआ, कर्म की बात अभी उत्सुक जुड़ता है अपने स्वभाव को च्युत करके, तो उसका नाम क्या कहते हैं? दुख है, पीड़ा है। ये तो बाहर से समझाने के लिए, इसलिए। और भगवान को आश्चर्य होता होगा ना, विस्मय, आश्चर्य, ऐसा कुछ क्यों नहीं? देखो क्यों नहीं तो पूछते ही रहना अभी अपने आत्मा को। जब शास्त्र में लिखा है नहीं, ऐसा नहीं, क्यों नहीं? यदि आश्चर्य हो भगवान तो केवल नान कैसा है? हमें आश्चर्य कभी लगता है? हिंदी में ऐसा शब्द आता है ना, जब मुझे आश्चर्यचकित रह गए, मुझे समझ में नहीं आता है तब। अरे हमारे अपूर्ण ज्ञान में ये नहीं आई, इसलिए हमें कुछ आश्चर्य आता है। आश्चर्य। अरे ये तो समझ लीजिए, कोई भी एक ले पुरुष को पूछेंगे आपका ज्ञान पूरा है अधूरा, तो निश्चित क्या जवाब आए? सामान्य रूप से हाँ भाई मुझे तो ज्ञान है ही, लेकिन थोड़ा कम है ऐसे। तो उसका अर्थ हुआ कि ये पर्यायगत बात है, बाकी स्वभाव में तो कैसे है? पूर्णता है। यदि न हो तो केवल ज्ञान में ये आई कहाँ से? तो यहाँ तीनों क्षुधा, इसमें 9 कर्म का, द्रव्य कर्म का और भाव कर्म का संबंध, ऐसे ही तृषा और ऐसे ही आश्चर्य नहीं हो, केवल ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है। उनको कोई भविष्य का होगे तभी जानेंगे, चलो ऐसे कोई लेवे तो नहीं, तो उसमें क्या दोष, क्या आपत्ति क्या? तो यानी केवल ज्ञान संपूर्ण नहीं हुआ। केवल ज्ञान संपूर्ण नहीं हुआ तो भाई ऐसी परिस्थिति होती है, चलो। पर मगर मैं भी अपने अधूरे ज्ञान में भी भविष्य का ज्ञान कर सकता हूँ। भविष्य कर सकते मर्यादा में रह के। मर्यादा। तो फिर से ये समझ लेना कि केवल ज्ञान में कुछ नहीं जानने में कभी शब्द प्रयोग नहीं करना। ये पता नहीं तो केवल ज्ञान क्यों कहा? वो तो अज्ञान साथ में आ गया। तो यहाँ ये करते कि जो क्षुधा तृषादि समस्त दोषों से मुक्त होकर, चलो फिर से मुनि अरिहंत परमात्मा को इतना समय होने पर भी क्षुधा तृषा क्यों नहीं होती? फिर से क्षुधा तृषा होना किसका सूचक है? वो तो आई मीन घाती कर्म का, पाप का उदय है। पाप का यहाँ तीर्थंकर एक बाजू के तीर्थंकर प्रकृति उत्कृष्ट पुण्य की है, और यहाँ के ऐसा पाप का उदय है ना। तीर्थंकर पुण्य प्रकृति में सबसे टॉप कौन है? तीर्थंकर नाम कर, तीर्थंकर नाम कर्म। तो वो एक बाजू ये है, और तू के उसको क्षुधा तृषा की पाप का उदय है, दुख लगता है।
अरे तूने भगवान को दुखी बना दिया, ये अज्ञानता नहीं दिखती। भगवान को खिलाया, सुला दिया। वो तो कुछ भी वो कितना काम चलता है, यहाँ तक एक सुधा त्रसा विस्मय आशय पेशी राग सभी समस्त दोषों से मुक्त होकर देवाधिदेव पने को प्राप्त हुआ। ये देखिए देवाधिदेव कौन होते हैं? देव को भी समस्त दोषों के राग द्वेष विकार भावों से रहित वो ही ये क्या है? देवाधिदेव है। देव में आप स्वर्ग ले लो, फिर गंधर्व देव आदि पढ़ लो, उससे भी वे कैसे है? आगे अधिक माने के ये सभी सौधर्म इंद्र है, गंधर्व देव, वो आपके चरणों में नमते हैं। तो उसका अर्थ है उससे भी आपका क्या है? पुण्य का उदय अधिक है, देव को प्राप्त है। तथा आयुध अंबरादिक व अंग विकार आदि जो काम क्रोधादि निंद भावों के चिन्ह उनसे रहित जिनका परम औदारिक शरीर हुआ है। तीर्थंकर होते हैं ना, उसका कैसा है शरीर? कौन सा है? परम औदारिक, परम औदारिक स्फटिक जैसा, माने उनका निगोदिया जीव निकल जाते हैं, निकल जाते। उसमें ये उनका जहाँ ऐसे असाता का उदय नहीं होता है। अल्प जो लिखा है ना शास्त्र में, उसका नियम सार में खुलासा है। पूरा एक विशाल सरोवर हो, इसमें एक छोटा सा ड्रॉप कोई अलग कलर का नाखो, तो उसमें क्या फर्क होगा? बड़ा सरोवर है, इसमें एक बिंदु जैसा आपने होता है ना, चलो एक माने इंक डाल दी, कोई कलर डाल दिया, तो पूरा ये सरोवर में कितना फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। जस्ट नथिंग। फिर भी ऐसे ही अरियन दशा में असाता का उदय जस्ट नथिंग। इसको यहाँ नहीं गिनते हुए ये उनको कुछ नहीं है। सुधादि मोक्ष देवादि देवपना, और राग द्वेष दोष रह गए तो समझना देवादि नहीं है। तो और आयुध अंबरादिक व अंग विकार आदि जो काम क्रोधादि निंद भाव के चिन्ह उनसे रहित जिनका परम औदारिक शरीर हुआ है। कुछ भी नहीं उनके शरीर पे, अंबर आदि वस्त्र आदि नहीं है, तो फिर आयुध की तो बात। अरे ऐसे हिंसा के आयुध तो साव के पास भी नहीं। सावक है ना, वो भी ऐसा नहीं करते हिंसा के। यहाँ तो कौन है फिर? मुनिराज है, तीर्थंकर के ज्येष्ठ पुत्र है, तो आयुध भी नहीं, अंबर आदि भी नहीं, और अंग विकार जैसे काम क्रोधादि निंद भाव उससे रही जिनका परम औदारिक शरीर हुआ, जन्म से ही परम औदारिक होता है। आहार होता है, निहार नहीं होता है। इसमें उनको ये सेड़ो नहीं होते, पसीना नहीं होते, सब बहुत से प्रकार से ऐसे जन्म से सभी ये होते हैं। तो इनका हो शरीर हुआ है। तथा अच्छा कोई के हमें ऐसा शरीर चाहिए, चलो परम औदारिक शरीर चाहिए, इसमें रोग नहीं होगा, नहीं कुछ नहीं होगा, तो अच्छी बात है। हमें परम औदारिक चाहिए, क्योंकि अरियन दशा के लिए, सिद्ध दशा के लिए ये बहुत जरूरी है। तो हम परम चाहिए कि नहीं? वैकृत शरीर चाहिए कि नहीं? अरे तू अपना भाव की निर्मलता करेगा वही। अरे वैकृत शरीर नरक में भी मिलता है, भाई तुझे लेके क्या करना? खाली देव पर्याय में ऐसा नहीं, कहाँ है? नरक पर्याय में भी ऐसा। तुझे क्या चाहिए फिर? तो यही सबको देहादि तथा आयुध अंबदादि अंग विकार जो काम क्रोधादि निंद भावों के चिन्ह उनसे भी रहित जिनका परम औदारिक शरीर हुआ है। तो उनको परम औदारिक का जो सभी लक्षण है ना, कुछ नहीं, सभी असाता के उदय से कुछ इनमें नहीं होते। अभी उनकी वाणी लेते हैं, जिनके वचनों से लोक में धर्मातिक प्रवर्तता है। चलो इनका आगे हो थोड़ा विस्तार, यार इनका तो लेंगे, समय पूरा हो गया। तो गणधर भगवान को तो सुत ज्ञान ही है, तो सुत ज्ञान में भी केवल ज्ञान की सभी अनुभूति आ जाएगी? नहीं, अनुभूति माने सभी आई मीन जो सुत ज्ञान, जो सम्यक सुत ज्ञान है गणधर भगवान भावश्रुत नाम, भावश्रुत, तो
उसमें केवली की जो वाणी है ओमकार ध्वनि, उसका सारा का सारा मर्म आ जाएगा। जितना ज्ञान में आया इतना वाणी में नहीं आया, जितना वाणी में आया इतना झेल नहीं पाए। और गंधर्व देव ने जितना उसमें सुना और ज्ञान हुआ, इतना उन्हें क्या है पूर्व को जिला, माने भगवान ने जैसा ऐसा तो गंधर्व देव ने नहीं जिला। गंधर्व देव ने जितना जिला है उससा लिपिबंध में नहीं है। लिपिबंध जितना हुआ माने इसमें आचार्य आदि इतना हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जितना अवेलेबल है इतना पढ़े नहीं है, जितना पढ़ा है ऐसी वहाँ भाव समझे नहीं, तो फिर तो क्या होगा। Any question from audience? ये परम औदारिक शरीर केवल ज्ञान के बाद हुआ कि आप बोले जन्म से भी होता है? तीर्थंकर को और सामान्य जो जीव होते हैं उसको केवल ज्ञान होने पर परम औदारिक बनता है। औदारिक शरीर तो है ही, लेकिन जो तीर्थंकर है ना वो जन्म से उनको परम औदारिक, जन्म से अच्छा, उसमें आहार होता है, निहार नहीं होता, आदि सभी है ना सब। 10 जन्म से है ना, जो उनका पसीना आदि नहीं होता है, इसमें कोई रोग नहीं होता है, सभी है ना। तो ये वहां से। अच्छा, any other questions, suggestions, comments? हाँ, ओके, चलो समाप्ति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दान। 9 times नमो का मंत्र। अंतानंद सिद्ध परवृष्टि भगवंतोनो जय हो। वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंश तीर्थंकर भगवंतोनो जय हो। सिमंद्रादि 20 विधर्मान तीर्थंकर भगवंतोनो जय हो। जिन मुखोद्भवात जिनवाणी मातनो जय हो। महादेव क्षेत्रથી શ્રીમદ સ્વામીના સંદેશા લાવનાર શ્રી કુનકુન આચાર્ય દેવનો જય હો। કુનકુન આચાર્ય દેવ રચાયેલા પંચ પરમાગમના રહસ્ય ખોલનાર પરમ પૂજ્ય અધ્યાત્મ મૂર્તિ શ્રી ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીનો જય હો। પ્રસમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો। धन्य एकातारी श्रीमद राजचंद्र देवनो जय हो। परम दिगंबर सनातन दिगंबर जैन धर्मनो जय हो। जय जयकार। जय 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 जय।